Big round of applause. Diagnostics. Let me begin by just giving a very heartfelt and warm thank you to Mr. Sarab, to the POCT group and the Q-Line team for the very warm welcome we had here and the opportunity to be here and celebrate what we also think is a very special day and a very special achievement in our partnership. This is a result of our strategic technical partnership within hematology. Bull is one of the founders and technology leaders in hematology. And in Q-Line, we now have a partner that will help us grow and develop with their advanced development and manufacturing skills. I believe our companies share many of the same values. We are united by our joint mission of bringing high quality company, driven by passion, humility, but also a desire to grow. And we are very proud of this partnership. We began our journey back in 2008 with a distribution agreement. And since then, our partnership has strengthened year by year. And now it's materializing in this new reagent manufacturing plant, which is really state of the art and something that we are very proud of. Good afternoon, everyone. It's a pleasure to be here. First of all, as Torben mentioned, I would like to take the opportunity and express my thankfulness and appreciation to Q-Line to bringing us here and inviting us. I would like to express my thankfulness to everyone here who's showing attention to this milestone that we are accomplishing together through this strategic partnership. And last but not least, I'm very, very pleased that we have accomplished what we said for 3 years ago as a project to start. Now we are seeing it is really becoming a reality. It is a real milestone in the history of the company, both for Bull Diagnostics in Sweden, but I believe for Q-Line. And what are the reasons behind that milestone? I would like to touch base a bit on that. I think that what we said a couple of years ago, that welcome all of you, all of the media people who's having a very busy schedule, but they have given very good time to this emotional moment. And I also heartily welcome our Swedish partner, Mr. Torben, Mr. Torres, Mr. Simha, and I also heartily welcome to my Indian associate partners. They are coming from various states and they have come and joined this emotional moment. इसीलिए मैं जैसा कि मीडिया बिल्कुल आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आप लोग इस बात को समझ सकते हैं कि कोविड में हम लोगों ने किस प्रकार से जो है प्रॉब्लम झेली थी। तो जो हमारे मुख्यमंत्री जी का विजन है कि अपने यूपी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है। अभी हम लोग कंज्यूमर स्टेट हैं या कंज्यूमर कंट्री है। ज़्यादातर मेडिकल डिवाइसेस और कंज्यूमर्स जो है आज भी बाहर से आते हैं। हम लोग सिर्फ असेंबलिंग करते हैं और रॉ बॉटम से API नहीं बनाते हैं। तो वो चीज़ हम लोग ने शुरू किया है, इसमें हम लोग कंप्लीट इकोसिस्टम बना रहे हैं। इसमें स्पेयर पार्ट्स बनाने से लेकर के उसका स्टरलाइजेशन के लिए गामा एडिशन प्लांट भी लगाया है, क्योंकि इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट है विप्रो के बाद में। और स्पेयर पार्ट के लिए हम लोग मैकेनिकल कूलिंग मशीन लगा रहे हैं और हम लोग वायरिंग के लिए सब कुछ लगा रहे हैं। मतलब एटलीस्ट हम लोग का ये विजन है कि 100% प्रोडक्ट जो है मेक इन इंडिया रहे, इसमें कुछ भी एक्सपोर्ट ना रहे। आज की डेट में जो भी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसमें मैक्सिमम कंपोनेंट बाहर से आते हैं, उसको खाली असेंबलिंग होती है यहाँ पे। जैसे फार्मा में भी API बाहर से आती है, कंज्यूमर में भी जो डायग्नोस्टिक की भी बाहर से आती है। तो हम लोग एंजाइम का भी हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कर रहे हैं। इस तरह से कंप्लीट इकोसिस्टम डेवलप करना चाहते हैं डायग्नोस्टिक
कि आप जानते हैं कि डायग्नोस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। जो हेल्थ केयर सिस्टम है ये 3D पे चलता है, डॉक्टर ड्रग डायग्नोस्टिक। और चौथा अभी डिजिटलाइजेशन हो गया है, जिसमें गवर्नमेंट डिजिटलाइजेशन बहुत फोर्स कर रही है, नहीं है वहाँ। और रिपोर्ट को SMS से आप देख रहे होंगे कि जिला अस्पतालों में सारी रिपोर्टें जो है SMS के माध्यम से जा रही हैं। तो हम लोग की कोशिश है कि मीडिया बंधुओं ने ये क्वेश्चन भी उठाया था कि CSC पे भी ये सुविधा नहीं है, तो उसके लिए भी कोशिश की जा रही है। पहले जिला अस्पताल में भी मैं हाल संधि की रिपोर्ट की जाती थी। आज की डेट में बड़ा गर्व का विषय है कि हमारे जितने भी जिला अस्पताल हैं सब एलिजिबल प्रोटोकॉल अपना रहे हैं डायग्नोस्टिक में। और करीब 20 इंडिया पहला स्टेट होगा कि जहाँ पे 25 जिले NABL हैं। और डायग्नोस्टिक में जो भी फुलफिलमेंट है वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको करें। और ये हमारा NGO है, NGO के माध्यम से करें या मेक इन इंडिया के माध्यम से करें। और इसमें जो फूल एक बहुत बड़ी कड़ी है, जो फूल स्टूडेंट से आए हुए जो हमारे ये पार्टनर्स हैं, ये लोग पाइनियर्स हैं काउंटर में, ये लोग इन्वेंटर्स हैं, ये लोग 50 ईयर ओल्डेस्ट कंपनी है जिनकी टेक्नोलॉजी के बहुत सारे पेटेंट्स हैं। आज की डेट में उनके इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी का इम्पॉर्टेंट बात है कि CBC ऑल इंडिया का जो CBC अपना पेटेंटेड है, जो टेक्नोलॉजी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है CBC की, जिसमें एक्यूरेसी 100% है। तो वो CBC किसी भी बीमारी में, फीवर हो, कैंसर हो, कोविड हो, किसी भी तरह का कोई भी डिजीज हो, मलेरिया, डेंगू, कोई भी एनी टाइप ऑफ डिजीज हो, तो सबसे पहले WBC, प्लेटलेट, हीमोग्लोबिन, इसकी टेस्टिंग होती है। इसकी टेस्टिंग के बेसिस पे ही आयरन डिफिशिएंसी है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत से प्रोग्राम, शिशु मातृत्व और आपका NCD नॉन कम्युनिकेबल डिसीज प्रोग्राम और इन्फेक्शन डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम, बहुत सारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोग्राम हैं